ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے خاص پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس سے بڑا احسان اللہ نے نہ کسی پر کیا ہے اور نہ کسی پر کرے گا۔ قرآن کا انسان اس کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اللہ وحدہ ہم سب کو اپنے حبیب کا ہمیشہ چاہنے والا ماننے والا بنائے رکھے، اور قرآن کا انسان جس تقاضے کے ساتھ اللہ سبحانہ نے ہمیں لبادہ بشریت میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی تقاضے پر ہم سب کو جینا نصیب فرمائے۔ قسم ہے زمانے محبوب کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان جس نے ایمان کو سلامت رکھا اور عمل صالح دائمیت کے ساتھ کیا اور مصائب و آلام کے وقت صبر کیا اور حق کا ساتھ دیا، حق پر قائم رہے، ایسے چار اوصاف کے حامل انسان گھاٹے میں نہیں، کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے پوری 4 شرطیں اللہ پاک نے اس آیت میں رکھی ہے: ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سارے ایسے مقامات ہیں، پوچھا گیا کہ انسان کو آزمائش، امتحان، اختبار، ابتلا، یہ سب کمی بیشی کے اعتبار سے کس طرح لیا جاتا ہے، یعنی کس انسان کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، کس انسان کو کم آزمایا جاتا ہے۔ تو آپ حدیث پاک کے حوالے سے سنیں، جس کو البدایہ والنہایہ اور دیگر حدیثوں میں بڑی تحقیق اور تنقید کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے یبتل الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ ذرا اس لفظ پر غور کریں، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دین کے مطابق آزمائے کا جانے کا مطلب اسی میں حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرما دیا گا فَإِن كَانَتْ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر دین میں انسان گھٹ ہوتا، نہیں سخت ہوتا، کس کا بھی لحاظ نہیں، دین کا لحاظ، صلابت، تسلم، ٹھوس، ہر حال میں دین، تو زید علیہ فی بلائہ، تو آزمائش میں اللہ اسے زیادتی دیتا ہے۔ جو زیادہ دین والا ہوتا، متسلب فی الدین ہوتا، تسلب، جس کے اندر دین میں سختی ہوتی، اس کو آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے، اور جس کے دین میں خفت کا لفظ آیا ہے، کمی ہوتی ایزی لے لیتا۔ دیکھیے بھائی بھائی کا قتل کر دیا، دین کا ذرا سا لحاظ ہوتا۔ سنتوش نگر میں کیا پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ، پورے ملک کا بالخصوص جائزہ لیجیے۔ حیدرآباد تو اس میں قتل و غارت گری میں بہت زیادہ ہی ہوں گے، اسے سب کچھ میں نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں، سب کچھ میں نمبر 1 ہے، دینداری میں بھی نمبر 1 ہے، الحمدللہ یہ بھی ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی بات کے لیے
छोटी सी बात ही होगी, भाई भाई में कितनी बड़ी बात होगी। ज्यादा से ज्यादा विरासत का मसला होगा, जायदाद का मसला होगा, रुपये कौड़ी का मसला होगा, पूरे दीन का तो मसला नहीं होगा, दुनिया ही का मसला होगा। दीन में सख्ती होती तो ये नहीं होता, तवाज़ु होता, झुकाव होता, माफी का उन्वान मिलता। दीन में सलाबत और सख्ती नहीं है, इसलिए उसे ढील है, और जिसे दीन में सख्ती हो उसको ज्यादा आजमाया जाता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपने नमाज पढ़ी है, हज की है, ज़कात दी है, सारी चीजें परफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको मुसीबत है, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपकी इबादतों को कबूल कर लिया है। यह अलामत है। मैं उन तमाम इंसानों को, खास तौर से औरतों को घर में बताइए जाकर, हजरत हम तो नमाज भी बराबर पढ़ रहे हैं, वजीफे भी बराबर हो रहा, तहज्जुद भी उठ के पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बरकत ही नहीं है घर में। वाह, अगर करोड़ रुपया तुम्हारे तकिया के नीचे आ जाए तो ये बरकत है? ये बरकत नहीं है। बरकत वाले रब से पूछ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बरकत वाली जात जिसके हाथ में, कुदरत में पूरे मुल्क की बादशाहत है, उससे पूछ बरकत क्या है। अगर इन तमाम के बावजूद तुम्हें तकलीफ और मुसीबत दी जा रही है तो समझो कि मैंने तुझे पसंद कर लिया है। इससे बड़ी बरकत क्या होगी? करोड़ रुपया एक तरफ, मेरी महबूबियत एक तरफ, लाखों रुपया एक तरफ, मेरी मोहब्बत एक तरफ। मैंने तुम्हें पसंद किया। आपको नहीं मालूम अंसार और मुहाजिरीन का मामला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। मुहाजिरीन और अंसार में से एक तबके को ज्यादा दिया जा रहा है, एक को कम। मैं ये तबका बोल रहा हूं बिल इरादा, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि सारे सहाबा कामयाब है, जन्नती है। हाँ, बेस ऑफ नजात है, बेस ऑफ ईमान है। एक को जब ज्यादा दिया तो दूसरे ने कहा जिहाद का मामला हो तो हमारे को बुलाते हैं। अब अंदाज बताना, लड़ाई का मामला हो तो हमारे को बुलाते हैं, माले गनीमत हो तो इनको ज्यादा दे रहे हैं। तकाज़े बशरी और स्टेटस उनका है, ये भी ध्यान रखिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मालो दौलत मैंने इनको ज्यादा दिया, क्या तुम पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या तुम ये पसंद करते हो कि मालो दौलत उनके साथ है और मोहम्मद तुम्हारे साथ है? अरे क्या रज़ीना किस्मत जब्बार फीना, हम राजी हैं तकसीम पर, हम इस तकसीम पर राजी हैं। इतनी बड़ी बात। मुसलमानों, कुरान के इंसानों, सुनो, अगर रब तुमसे राजी है तो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, रब तुमसे राजी है तो तुम्हें तकलीफ होगी, रब तुमसे राजी है तो तुम्हें, ये हम नहीं, मुस्तफा बोल रहे हैं, ये नबी बोल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कुछ सारे कलाम ऐसे हैं जो हिजरत कर, नबी जब हिजरत करके गए तो सब पर हिजरत फर्ज हो गई थी ना, सब पर। जो लोग रुके हुए थे, ईमान तो लाए थे लेकिन हिजरत नहीं किए, इन्फॉर्म किया गया हिजरत करो और ईमान में कमी होगी। ये जुमला सुनना था, उसी वक्त फौरन जादेरा और घर छोड़ करके सब चले गए। देखा, ईमान तो ले आए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान, उनकी बातें, उनके अहकामात, उनके लिए जो पॉजिटिविटी है, इसको मुकद्दम, शरीयत को मुकद्दम, नबी को मुकद्दम, कुरान को मुकद्दम, फरमान खुदा और रसूल को मुकद्दम, ये है आपकी कामयाबी का राज। पैसे, दौलतें, माल, ये कामयाबी का राज नहीं। क्यों ऐसा हो रहा? दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। ये भी बड़ी आजमाइश है। ये भी कामयाबी की जमानत है। दूसरा लाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अच्छा, आप इधर उधर नहीं देखिए भैया, हम बात आ रही है। दो हदीस मैंने सुनाए। पहली हदीस ये कि अगर आपको आजमाया जा रहा है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, परेशानियां हैं, तो समझ जाइए कि आपको अल्लाह ताला महबूब बना लिया है, पसंद कर लिया है, कुर्बत मौला आपको हासिल हो चुकी है। अब इसको आपको बचाना है। अगर आपने रिजा बरजाए इलाही का इजहार किया तो कामयाब हैं, और अगर शिकवा किया तो नाकाम हो गए। इसीलिए आप सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह पाक ने जिन्हें बनाया है वो अंबिया किराम रसूलान निज़ाम है। आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, तारीख उठा लें, कुरान हदीस सब का मुताला कर लें कि जितनी मुसीबतें और तकलीफ अंबिया और रसूलों को, वो किसी एक क्या किसी भी उम्मती को नहीं हुई। सबसे आला मखलूक। क्यों? इसलिए सबसे ज्यादा आजमाइश, कत्ल तक का उन्वान, यक़्तुलून नबिय्यीन, कुरान में है, नबियों को कत्ल किया गया। आपको क्या है? महंगाई की वजह से कमाई ओत्ते का ओत्ते है, महंगाइयां बढ़ती जा रही, इसलिए परेशान है आप, इसलिए परेशान है। लेकिन नहीं, उनको याद कर लीजिए जिनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा है, तो आपके दो वक्त का खाना आपको शुक्र अदा करने पर मजबूर कर देगा। अपने निचले वालों को हमेशा याद रखिए। सेहत और तंदुरुस्ती का मामला हो, दवाई खा रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आईसीयू में रहने वालों को याद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंह से पढ़ेंगे, शुक्र अदा करेंगे। ये दरसे रसूल है, ये दरसे कुरान है। कुरान का इंसान इसी तरह से प्रमोट करने का हुक्म है। आप ऐसा बने। आप तिजारती मामला हो, फाइनेंशियली, माशी, माश, आयली, दाखिली, जो भी मामला हो, हर मामले में आप देखें, हरफे शिकायत आ गया, समझ जाइए कि आप अल्लाह की तरफ से इस लायक नहीं है कि आजमाए जाएं। मालो दौलत कभी भी कामयाबी की जमानत नहीं है। यहां तक कि और सुनिए, माल और औलाद ये आजमाइश की तो चीज है। एक कुरान पाक ही क्या, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अरे बाप रे, माल औलाद दोनों आजमाइश है। पारा नंबर 18 में तो इतनी सख्त आयत है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनुन। ए माल और औलाद और औलादे नरीना पर फख्र करने वालों, आओ, कोई काम नहीं देगा। अरे बाप, कामयाबी चाहते हो तो इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सलामत वाला दिल लाओ, कामयाबी मिल जाएगी। देखिए, सलामत वाला दिल। कल्ब की 3 सूरतें कुरान पाक ने पेश की है। सूरह बकरा में आप देखेंगे तो कल्ब आसिम का लफ्ज है, ला तक्तुमुश शहादा व मन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बु। कल्ब आसिम, अलिफ खड़ा ज़बर आ, सा मीम ज़ेर सिम, आसिम यानी गुनाहगार दिल। हमेशा गुनाह की तरफ, हमेशा गुनाह का दर्श देता हो, हमेशा गुनाह के बारे में बोलता हो, ये कर लो, जो अपनी ख्वाहिश कह रही है वो करते चले जाओ। अरे देखेंगे, अभी कर लेते हैं गुनाह, अल्लाह तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। उसे ये नहीं मालूम कि माफ करने वाले जिस रसूल ने बताया कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, उसी रसूल ने कहा है कि रात में जब सोया करो तो ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हे अल्लाह, मैं तेरे नाम पे मर रहा हूं और तेरे नाम पर ही जिंदा रहूंगा। हर रोज मौत का लफ्ज पढ़कर सोते हो, पता नहीं बिस्तर पर सोने वालों कब्र में तुम्हारी नींद टूटे। और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अल्लाह माफ करने वाला है? फिर हम आज गुनाह कर लेते हैं, आज मार देते हैं, देखा जाएगा। शिर्क तो नहीं है ना, कुफ्र तो नहीं है ना। यही सब सोच हमारी बेटियों को कुफ्र और इर्तिदाद के दलदल में और काफिर और मुशरिक के साथ भागने पर मजबूर कर रहे हैं कि आपके घरों में यह ज़हन दिया जाता है, यह शिर्क तो नहीं है ना, यह कुफ्र तो नहीं है ना।
गुनाह गुनाह है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ज़हर ज़हर है, चाहे कम हो या बेश हो। ये ध्यान में रखो मुसलमानों। कभी भी चलो ठीक, छोटो दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुनाह छोटा हो, ये बताइए कि एक कतरा पेशाब अगर 5000 वाले सेंटेक्स में हम डाल दें तो वो पाक रहेगा या नापाक? एक कतरे में भी वही तासीर है जो एक गिलास में है। इतना नापाक हो या इतना नापाक, गुनाह भी वैसे ही है मुसलमानों। थोड़ा करो या ज्यादा करो, गुनाह गुनाह है। ये जो मिसकोट किया गया है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, ये सब तरगीबाती मजलिसी तो हो सकती है, नबवी नहीं हो सकती। ये जलसे जुलूस और रिवायती तो बातें हो सकती है, नबवी बातें नहीं हो सकती। नबवी बातें सुनाओ। अबू हजरत उमर इब्न खत्ताब चल रहे हैं, अचानक साहबा अपने साथियों कहते हैं रुको, एक कंकड़ी लेते हैं और कंकड़ी लेने के बाद कहते हैं एक कंकड़ी तू उमर इब्न खत्ताब से अफजल है। और पीछे वाले जितने भी हैं जिनसे शैतान भागता, जिनसे शैतान डरता, आदलिल असहाब, अशराए मुबशरा में से, खुलफाए राशिदीन में से, तमाम इंसान में सबसे अफजल जो है अबू बकर, नबियों के बाद, उनके बाद का दर्जा रखने वाले ऐसा बोल रहे, हम लोगों को क्या होता? कहते ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कहते हैं कि चूंकि ये बेजान है, इससे गुनाह नहीं होता, हम जानदार हैं, हमसे गुनाह भी हो सकता है। बाबा, किसने तुम्हें जन्नत दिया है? नबी से और सहाबा से भी ज्यादा तुम्हारी तौहीद और रिसालत है। यही जो जलसे और जुलूस और महासी की दुनिया को सुन करके जो एकदम आजाद हो ना, यही हो रहा है। बहन के हिस्से को मार रहे हो, भाइयों की जायदाद को मार रहे हो, 10,000 रुपया रिश्वत देकर वकीलों के जरिए से हड़पाने वालों, यहां तो तुम आ चुके कामयाबी जाहिरी तौर पर, लेकिन सुनो, कयामत को तुम दावत दे रहे हो। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि विरासत तकसीम अच्छे से की जाएगी। कयामत नहीं आएगी अगर विरासत और जायदाद ठीक ठाक से तकसीम न की गई तो कयामत आ जाएगी। ये नबी के साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, आप कामयाब हो जाते हो, हम तो घर लिखा लिए। ये है पेपर, किसको बोल रहे हैं? उस बहन को जो एक माँ के पेट से आप भी निकले और बहन भी निकली, वो माँ बहन आंसू गिराकर तुम्हारे घर से रो रही है, रहमत तो तुम्हारे घर से ऐसे ही चली गई है। जिस बहन के बारे में नबी ने कहा था, ए भाई जब घर जाओ तो बहन के लिए तोहफा जरूर लेकर जाया करो। क्या बात है, उस बहन को उसकी जायदाद से बेदखल कर रहे हो। नहीं, कामयाब आप नहीं हो। अब क्या समझते हो? लाखों रुपया कमाने वालों को एक तरफ रखो, क्लियर, बड़ी मोहब्बत से जुमला कह रहा हूं, और खुदा वालों को एक तरफ रखो। वो सड़क के किनारे पर बड़ी आसानी से सोया रहता है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ और मुसीबत नहीं है, वो अल्लाह उससे राजी है। और करोड़ों रुपए वालों, मक्खी भी आवाज कर दी तो लगेगा कि कहीं डाकू तो नहीं आ गया है। कहां गया तुम्हारा सुकून? कहां गया तुम्हारा चैन? तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हारे रब ने आजमाइश में रखा था। तुमने आजमाइश को शिकवा का नाम दे दिया, आजमाइश को रज़ाए इलाही का नाम दो, आजमाइश को कुरान के इंसान का नाम दो। जिस कुरान ने आपको कहा है कामयाब वो है जो कि ईमान वाले हो, कामयाब वो है जो नेक अमल करते हो, कामयाब वो है जो मुसीबतों पर हक का साथ देते हो, परेशानियों में हक का साथ देते हो, और मुश्किलात और तकलीफ में सब्र का साथ देते हो। वो कामयाब है। थोड़ी सी चेहरा नीचे करके इन चारों को अपने अंदर टेली करो, नहीं हो कामयाब। आप ईमान वाले तो कह सकते हैं कि मैं दावा कर रहा हूं, हां मैं ईमान वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन सुनो, आज मैं 2 आयतों के जरिए से उस बारे में भी आपकी हिदायत और खुद को भी महजूज करना चाहता हूं। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
वअला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आयत करीमा सुने, सूरह बकरा की आयत नंबर 213 या 14 में, पारा नंबर 2 की मैं आयत एग्जैक्ट पढ़ देता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरल्लाहि क़रीब। अल्लाह पाक फरमाता है, ए लोगों सुनो, क्या तुम इस घमंड में हो? क्या तुम ये सोचे हुए हो? क्या तुम ये गुमान कर रहे हो कि तुमको डायरेक्ट जन्नत दाखिल कर देगा अल्लाह ताला? सिंपल तर्जमा सुने, अम हसिबतुम, क्या तुम गुमान किए हो, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में चले जाओ, वलम्मा यातिकुम, और तुम्हें वो मुसीबत और तकलीफ ना आए जो पिछलों को मैंने दी है, जो पिछली उम्मतों, पिछली कौमों को मैंने तकलीफ और परेशानी दी है, मुसीबत तुम्हें नहीं आएगी। मस्सतहुमुल बअसाउ, मशक्कतों में मुब्तला मैंने उनको किया, बलाओं में मुब्तला मैंने किया। और तफसीर इब्न कसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से कहा जाता, बअसा बोलते फकीरी को, मोहताज फाइनेंस के मामले में, माइश और माश के मामले में मैंने उन्हें मजबूर किया, तंगदस्त किया। क्या तुम ये जानते हो कि तंगदस्ती के बगैर जन्नत में चले जाओ? मेरे हबीब की जबान सुनो, अल फक्र फकरी, तंगदस्ती और फकीरी मेरा सरमाए इफ्तिखार है। मैं फख्र करता हूं अपनी फकीरी पर, क्योंकि उस फकीरी में सारे एहतियाज की दूरी छुपी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर आप खल्क में फकीर नजर आएंगे तो खालिक में मुख्तार नजर आएंगे। तो क्या तुम गुमान करते हो इस बात का, घमंड में हो, गुरूर में हो कि जन्नत में चले जाएंगे? मैंने हमेशा एक जुमला कहा है और फिर आज दोहरा रहा हूं, सारे अच्छे एक तरफ, ध्यान दीजिएगा, बिलखुसूस कुरान के जरिए से, कुरान के इंसान के उन्वान से बात एकदम दिल में खोस लीजिए भाई। ये तशरीह नहीं है, एग्जैक्ट कुरान है और इस पर अमल करना हमारी न ये कि इंसानी जिम्मेदारी है बल्कि तौहीदी जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिए आप, जो अल्लाह आपको पोजीशन दे कबूल करते हैं आप, जो अल्लाह आपको हुक्म दे कबूल करते हैं। आमन्ना सद्दक़ना, यही तो ईमान है ना आपका हमारा। अल्लाह के नबी ने जो कहा हमारा उस पर ईमान है, और उसमें जर्रा कमी बेशी भी अगर करेंगे तो ईमान में कमी है। ईमान कामिल, ईमान नाकिस आप समझते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाई अहम बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सारे एक तरफ, सारे अच्छे एक तरफ। मैं उन स्त्री कपड़े पहनने वाले नौजवान से कहता हूं और बच्चों से कहता हूं जो ओल्ड एज होम का नजरिया रखते हैं, समझ जाओ, वरना तुम्हारे पास तो ओल्ड एज होम का मामला भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद से महरूम कर देता है। बहुत परेशानी में रहोगे। ये 10 साल 20 साल की जो जवानी की जो है ना जोश, इसमें तुम अपने मां बाप को, जिस मां बाप के हवाले से, जिस वक्त के मां बाप, नोट कीजिएगा इस जुमले को, जब बाप मां ताकतवर होते हैं ना, तो उस वक्त नहीं कहा है कि उनकी खिदमत करो। जब ओल्ड एज होम का वक्त ही हो तब ही कहा है कि तुम उनकी खिदमत करो। अल्लाह फरमाता है, इन नकल केबरा, बाप या मां या दोनों में से कोई एक भी बुढ़ापे को पहुंच जाए, जवान बाप मां के हवाले से नहीं, बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनकी खिदमत करो। खिदमत ज़बानी तौर पर भी, प्रैक्टिकली तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली तौर पर भी, हर तरह से उनकी खिदमत करने, सिर्फ पैसा दे देना ही नहीं, प्यार भी देना है, मोहब्बत भी देना है। ऐसा ना हो कि बाप अकेला, मां अकेली बैठी हुई है और तुम मोबाइल देख रहे हो। मां ने कहा, बेटा रुको, मैं मोबाइल देख रहा हूं। यह भी गुस्ताखी है।
اور اس سے بھی اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے. ماں کو ٹائم دو, باپ کو ٹائم دو, ورنہ زمین کے اندر چلی گئی ترس جاؤ گے, ترس جاؤ گے. موبائل تو ابھی ریپیئر کا بھی مسئلہ آتا ہے نا. ماں باپ تو کتنی بھی تکلیف ہو یار, وہ آئی سی یو میں بھی ہونا تو اپنے لیے نہیں تمہارے لیے دعا کرتی ہے یار. وہ تو ایسے عالم میں بھی یہی کہتی ہے, اللہ میرا تو ہو گیا, میرے بال بچوں کو اچھا رکھنا. ان کو ٹائم دو یار. قرآن کا انسان بنو. آپ پوچھو ان سے جن کے پاس مائیں نہیں ہے. ہم سے تم کہہ رہے ہو نا, میں ایک بار یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف اللہ کا سب سے بڑا ولی ہو, آپ کا پیر ہو, آپ کا استاذ ہو, سب بڑے ایک طرف موجود ہو, اور آپ گھر سے جب نکل رہے تھے ان سب کی بارگاہ میں زیارت کے لیے, تو ماں نے کہا بیٹا, آپ نے صرف اتنا کہا رکو ماں میں ذرا زیارت کر کے آتا ہوں, صرف اتنا سے کہا. ان کے لفظ بیٹا کہنے پر تو خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے کتنی بھی آپ کو دعائیں دے دی, اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. نہیں کرے گا آپ کی دعا قبول. ماں کا دل دکھا کر کے, بہن کا حصہ مار کر کے, بیوی کے حقوق کو پامال کر کے, بھائی بہن کا دل دکھا کر کے, گھر میں حقوق العباد کی پامالی کر کے تم باہر بڑے سے بڑے ولی کے پاس بھی چلے جاؤ, دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ قبول کرنے والا صرف اللہ ہے. اور اس نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ احکام اور اہم احکام ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے پہلے جو گھر میں آتے ہیں وہ ماں باپ کے احکام ہے, ماں باپ کے حقوق ہے. وہ زندہ ہے تب بھی ان کی رسپانسبلٹی آپ کو نبھانی ہے. آپ یہ کہہ کر کے سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ انہوں بھی تو بیٹے ہیں آپ کے, انہوں بھی تو بیٹے. یہ حکم نہیں دیا, ہر اولاد کو کہا ہے تم ان کی خدمت کرو, تم ان کی خدمت کرو. یہ نہیں کہا کہ یہ کر رہے ہیں تو تم مت کرو. ماں باپ کی خدمت عبادت ہے, خدا کا حکم ہے, حالات نہیں, تقاضے نہیں ہے. تم ایک روٹی کھاتے ہو, تم اپنی غربت کا اعلان مت کرو, ارے وہ ماں تو ایسی تھی یار کہ ایک روٹی جب ہوتے تھے نا, تم 3 بچے تھے, پانی پی کر کے تمہیں کھلاتی تھی اور جھوٹ بول کر سو جاتی تھی کہ میں نے کھا لیا ہے, بیٹا تو کھا لے. ماں تو ایسی ہوتی ہے یار. اور تم فائنینس کا, مہنگائی کا, میرے نبی کے زمانے سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. پتے کھانے کا عنوان آج ہے, پرانے ہی زمانے کا عنوان ہے. کیا کھلایا تھا حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو, کیا پلایا تھا؟ وہ خدا کی رضا تھی, خدا کی رضا تھی. تو کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم جنت چلے جاؤ؟ یہ قرآن کا حکم ہے, کسی پیر کا حکم نہیں ہے. دھیان دیجیے گا, سارے مخلوق ایک طرف اور قرآن کا حکم ایک طرف ہے. کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم جنت چلے جاؤ اور تمہیں وہ مصیبت نہ آئے جو پچھلوں کو آئی ہے؟ تمہیں فقیری نہیں آئے گی, تمہیں باسا مشقتیں نہیں آئے گی, تمہیں بلائیں نہیں آئے گی, تم جھنجھوڑے نہیں جاؤ گے, تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی, تم پر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوں گے. یہ سب اللہ پاک نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا, اور آج ذرا سی آنکھ بند کر کے دیکھو تو یہ ساری مصیبتیں تم پر مسلط ہیں. اب شرط کیا ہے؟ ان مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے نبی نے بھی اور تم جو نبی کے بلیور ہو, تم دونوں مل کر کے الا ان نصر اللہ, ان مصیبتوں پریشانیوں کو دیکھ کر کہے اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی ایسے عالم میں بھی تمہارا اٹریکشن اگر اللہ کی طرف ہے تو سنو, الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تم ہمارے پاس تعویذ کے لیے برکت نہیں ہو رہی ہے. کمال ہے, 1 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے 10,000 کا گھوس دے رہے ہو یار. کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو ایسا. نوجوانوں, یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, مگر اس جوانی کی پوچھ اللہ پاک ضرور فرمائے گا.
बचपन का हुक्म नहीं है, नाबालिगी का पूछ नहीं है, इस तरफ बुढ़ापे का भी पूछ नहीं है, जवानी की पूछ है। इसी जवानी पर इतराते हो ना। और अगर मां खांसती है तो बहू के अल्फाज क्या आते हैं, बुद्धि मरती क्यों नहीं? तेरे कान बस हो गया है। अच्छा, कान बस हो गया, सीरियल सुनकर के बस नहीं हुआ तुम्हारा, बुराइयां देख करके बस नहीं हुआ। जिस मां ने तुम्हारे लिए दुआएं की, अल्लाह मेरी बहू को अच्छा रख, मेरे बेटे को अच्छा रख, तन्हाई में दुआ की, और जिसकी दुआ से तुम पर बरसात हो रही है बरकतों की, उनके लिए तुम्हारे कान तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हारी आंखों में परेशानी है, लानत है। ये हमारी बोली नहीं, कुरान और हदीस की तरफ से। जो अपने घरों के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट और एहतराम न करे, कभी भी बरकत की उम्मीद न रखे। क्योंकि सुनो, रहमत की बारिश भी अल्लाह ताला बुजुर्गों के वसीले से बरसाता है, रिज्क भी अल्लाह ताला बुजुर्गों के वसीले से देता है। मिशकात के हवाले से मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूं, और सुनो, यंतसिरू बिहिम अलल आदा, उन्हीं बुजुर्गों के वसीले से दुश्मनों पर फतह भी अल्लाह ही देगा। तुम हमारी तारीफ लेकर के और जहां पर जाकर के हाँ ईंटे के नीचे गाड़ दो, वो हो जाता, तलाक हो जाता, वो हो जाती, शादी हो जाती। अरे मां का पांच रब से दुआ करो, कसम खुदा की तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। बाप का सीना लग, बाप का हाथ अपने सर पे रखवा, कसम खुदा की तुम्हारी हाथ उतरने से पहले दुआ कबूल होगी। तुम बाहर कहां जा रहे हो? इसीलिए तुम नाकाम हो कि रब ने घर में रखा है तुम्हारी कामयाबी और बाहर तलाश रहे हो तुम। न करो ऐसा। मां बाप है, कब्र कर लो, नहीं है तो जाओ। कत्तों पर बहुत टाइम दे चुके नौजवानों। कुरान का एक और फरमान सुनो, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू, क्या लोग इस घमंड में हैं कि वो छोड़ दिए जाएंगे? यक़ूलू आमन्ना, आइए मुस्लिम, आइए मोमिन, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, कामयाब हो जाएंगे। बेस ऑफ नजात जरूर यही है, लेकिन मुझे बताओ ये उम्र किस लिए अल्लाह ने दी है आपको? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, लेकिन ये उम्र किस लिए दी है आपको? किस लिए दी है? वहला युफ्तनून, आजमाए नहीं जाओगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सुनो, तुमसे पहले भी हमने आजमाया है कि कौन सच्चा था ईमान में और कौन झूठा था ईमान। ईमान की सच्चाई यही है कि जो रब कहे वही मानो, जो रब कहे वही मानो। सच्चा पीर भी वही है जो रब की कहे आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चा मुरीद भी वही है जो रब की कहे को अपने पीर की जबान से सुनने की तमन्ना करता हो। नफ्स ने अगर उखाड़ दिया कामयाब नहीं होगे, और खुदा की तरफ झुक गए कामयाब हो जाओगे। अगर हर चीज आप चाहते हो कि तुम्हारे लिए कामयाबी का सबब बने, तो कब्र ही से कामयाबी का सबब बनेगा। हुकूकुल इबाद की पासदारी करो, टाइम दो अपने मां बाप को, टाइम दो अपनी बीवी को, शादी नहीं हुई तो टाइम दो बहनों को, मोबाइल को टाइम जितना दे रहे हो ना, उसका अगर 10% भी अगर मां बाप को टाइम दे दिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह उनकी दुआएं तुम्हें लग जाएंगी, लग जाएंगी। मां बाप तो ऐसे भी कुछ है अभी जिनको मोबाइल चलाने तक नहीं आता, और तुम उन पर ये करते हो, ये जमाना है, वो जमाना है। जरा कलमा बदल कर दिखाओ, जरा कुरान बदल कर दिखाओ। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हो। नहीं मुसलमानों, कुरान का इंसान वो है जो ईमान पर कायम रहता है, जो नेक अमल करता है, जो सब्र करता है, जो हक का साथ देता है, भाई भाई से लड़ता नहीं है, आपस में इख्तिलाफ नहीं रखता है, बुग़्ज़ नहीं रखता है, अदावत नहीं रखता है। अर्ज करो कसम खुदा की कि हम कुरान का इंसान बनकर दिखाएंगे। तुम ये बनो, रब्बुल आलमीन तुम्हें सब कुछ बना देगा इंशाअल्लाह। रब कुछ सब बना देगा आपको। अब्दुल कादिर खुदा नहीं है, बंदा है खुदा का, मगर सुल्तानुल आरिफीन रब ने बना दिया है। क्यों बनाया? वो कल्बे आसिम नहीं रखते थे, कल्बे सलीम रखते थे।
गुनहगार दिल नहीं रखते थे। गुनहगार दिल की पहचान ये है कि आपके नफ्स के खिलाफ कोई काम हो तो फौरन आप लड़ाई करने लगते हो। तुम 10 मिनट के मसले को वकीलों के पास घूम घूम कर पैसे भी खर्च करते हो। आओ तुम विरासत का मसला हमसे पूछो, आओ खुला का मसला हमसे पूछो, आओ शरई अदालत में निकाह का मसला हमसे पूछो। तुम शादी करते हो, गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब सर्च करते हो। 10 मिनट हमें टाइम दो, मुस्तफा ने सारा डिटेल तुम्हें बता दिया है। आओ तो सही, हम मुस्तफा के वारिस हैं, आओ तो वारिस नबी के पास। इंशाअल्लाह जब नबी के वारिस के पास आओगे तो हम तुम्हें नबी तक पहुंचाएंगे, और नबी तक पहुंचने वाला नाकाम नहीं हो सकता। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शामी जिंदगी में बहार रौनक रानाइयां नसीब फरमाए, कुरान का इंसान बनाए। आमीन बिजाह सैयदुल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।